As Sneha introduced me, I am Ishant, and I'm a final year undergraduate at NIT Kurukshetra. I have got placement at Oracle, and I'm looking forward to talking to all of you about technology and how we can get placements and all. So yeah. Hi, thank you, Sneha. I'm Sejal Gupta, and I'm also a final year undergraduate at NIT Kurukshetra. I am also a Microsoft Learn Student Ambassador currently, which is a program through which Microsoft aims to impact different stratas of society with their products. And besides that, I have recently interned at Goldman Sachs as a software developer and placed also at Goldman Sachs. I have interests in app development and natural language processing, and looking forward to connecting with you all. Also, you can connect with me as well as Ishant on LinkedIn. Okay, over to you, Sneha. Yes, thank you so much for introducing yourself. So let us start the meeting. I want to ask you all first, in which language you are most comfortable, so that we can carry forward this meeting very nicely. So you may write in chat box, or you may ask. So if anyone has any problem with English, then they can tell in the Hindi. chat box. I Me think personally, even. most of the students are from first year, and I think they are not as much comfortable in English. So we can go through Hindi in this session, but from the next session, we may carry forward with English. So we can start. So is it Okay. comfortable for you all? If everyone knows Hindi, then we can go with Hindi. Yes. Mm. So Okay. okay, So let's start. okay. Okay, Shan bhai, now you can Yes, start. Sejal will present the. We have made a presentation. एक Okay. PPT बनाई है हमने. Yeah, I'm not able to share the screen. Wait for a minute. Yeah. Okay. Yes. So, thank you so much for joining us today, and we hope everyone is safe and sound before like beginning the whole session. I would also like you all to be interactive since I'll not be able to see the screen. So please keep popping up the questions, okay? Yeah. See, the agenda of the meeting would be that हमें पता है कि आप लोग बहुत novice हो और थोड़े amateur हो अभी, okay? So आप एक बबल में थे अभी तक 12th क्लास तक, there was schooling going on, okay, but there is a very bleak line जिसको अब आपको burst करना है और अब आपको एक न्यू वर्ल्ड में एंटर कर रहे हो. नाउ इट्स योर कॉलेज लाइफ. सो दिस सेशन विल ऑल बी अबाउट गाइडिंग यू गाइज ऑन हाउ टू मूव अहेड एंड हाउ टू यूटिलाइज योर 4 years and how not to waste them. Okay, so Ishant, would you like to proceed? Yeah, sure. So हम इस तरह से प्रोसीड करेंगे कि हमने 6 स्टेप्स बनाए हैं तुम्हारे लिए, ताकि तुम देख पाओ कि एक इंजीनियर एक जर्नी में कैसे इंजीनियर बनता है एक बच्चा जो फर्स्ट ईयर में घुसता है. ओके, सो वी विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड सी दैट एक इंजीनियर की लाइफ कैसे दिखती है. मैं पहले बता दूं कि ये पूरी प्रेजेंटेशन और ये सेशन स्पेसिफिकली टारगेटेड है उन लोगों के लिए जो या तो सीएस ब्रांच से हैं या फिर अपना करियर सीएस ओरिएंटेड बनाना चाहते हैं. Like if someone wants to be a web developer or app developer or machine learning engineer or anything related to that, तो उनके लिए है ये स्पेसिफिकली. तो अगर कोई कोर ब्रांच का बच्चा यहाँ पर सोच के आया कि मैकेनिकल के बारे में बताया जाएगा, तो मैं नहीं बता पाऊंगा. भले मैं मैकेनिकल से हूँ, बट मैं नहीं बता पाऊंगा. सो हाँ, तो इंजीनियर की लाइफ में लाइक यू विल सी दैट
once you get into third or fourth year, that you just code. Most of the time you just code. So that's why eat, sleep, code, repeat. फर्स्ट टू सेकेंड ईयर में तुम पढ़ते हो और थर्ड फोर्थ ईयर में तुम पूरे दिन कोड करते हो. तुम उठते हो, तुम कोड करते हो, तुम खाना खाते हुए कोड करते हो, तुम सोने से पहले कोड करते हो, तुम सोते हो ये सोच के कि यार मैं ये कोड कैसे लिखूंगा कल. तो वी विल गो टू नेक्स्ट स्लाइड कि इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या होता है. तो एज एन इंजीनियर यू आर सपोज्ड टू बी इनोवेटिव, यू आर सपोज्ड टू मेक न्यू थिंग्स, but the college will teach you that you are not allowed to do something different from the curriculum. So तुम्हें खुद से सीखना पड़ेगा, तुम्हें खुद को सिखाना पड़ेगा. So engineering is a 4-year long do it yourself video that you watch on YouTube and just learn stuff. तो अपने टीचर से सजेशन लो, उनसे पूछो कि क्या करना होता है और वो बिल्कुल मत करो. तुम ऐसे ही बनोगे इंजीनियर. और अभी आप फर्स्ट ईयर में आए हैं, आपको इंजीनियर कॉलेज के बारे में उतना पता नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ कि ये फर्स्ट ईयर उड़ जाएगा, लिटरली उड़ जाएगा. तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब शुरू हुआ था, उसमें हुआ क्या, तुमने क्या सीखा, तुमने क्या पढ़ा. बिकॉज द सब्जेक्ट्स आर नॉट दैट इंटरेस्टिंग. फिजिक्स होता है, मैथ्स होता है, केमिस्ट्री होता है, कभी कभी ड्राइंग भी होती है. तो तुम भूल जाओगे फर्स्ट ईयर को, ठीक है, वो उड़ जाता है. तो जब हम फर्स्ट ईयर में आते हैं ना, तो लोगों के पास ड्रीम्स क्या क्या होते हैं कि मैं रोज पढ़ूंगा, मैं रोज कोड करूंगा, मैं ये भी कर लूंगा, मैं स्टार्टअप खोल लूंगा, मैं अपना स्टार्टअप बेच भी दूंगा, मैं गूगल में भी जाऊंगा, माइक्रोसॉफ्ट में भी जाऊंगा, फेसबुक में भी जाऊंगा. बट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर वी रियलाइज दैट हमने उसमें से आधी चीजें तक नहीं की हैं, और फिर हम उन आधी चीजों को छोड़ देते हैं कि ये हम नहीं करेंगे. फिर यही चीज हर साल होती है कि तुम सेकेंड ईयर के बाद वो उसकी आधी चीजें नहीं करते हो, थर्ड ईयर के बाद उसकी आधी चीजें नहीं करते हो, फोर्थ ईयर में आने के बाद तुम्हारे पास एक चीज रह जाती है कि यार बस जॉब लग जाए. तो उसको बोलते हैं कि तुमने अपने 4 साल वेस्ट कर दिए, और मैं चाहता हूँ कि तुम में से कोई भी वो ना करे. तो ये जो मेरी टिप होगी वो होगी कि अपना फर्स्ट ईयर एंजॉय करो, क्योंकि नए लोग मिलते हैं, तुम उतना पढ़ना नहीं पड़ता, बट उस टाइम को जो तुम्हें मिला है ना, उसको वेस्ट मत करो, खुद को मत खो दो उस प्रोसेस में. These 4 years of engineering will be the most important time of your life, because हमें मोस्टली 4 साल ही मिलते हैं खुद को प्रूव करने के लिए, एक करियर बनाने के लिए, एक लाइफ बनाने के लिए. थोड़ा अनफेयर है क्योंकि ज्यादा टाइम मिलना चाहिए खुद को एक्सप्लोर करने के लिए, बट ऐसा नहीं होता. सो अभी बेस्ट ऑप्शन ये होगा कि तुम अपने टाइम को बहुत ही अच्छी तरह यूज करो, अपने आने वाले 4 साल को बहुत अच्छी तरह यूज करो, और अब हम बताएंगे तुम्हें कि तुम्हें वो कैसे करना है. So over to Sejal, and Sejal will tell you that how to use the 4 years. Right. So thank you, Ishan. First of all, when to learn. Okay. हम यही सोचते रह जाते हैं कि अब ओके ठीक है, ये नई चीज है, इसको कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें, ठीक है. उसको मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर स्टक कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है. आपको भी पता है यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, एंड इवन यूट्यूब पर ऐसे बहुत सारे वेबिनार्स भी होते हैं जो हम आज कंडक्ट करा रहे हैं. तो व्हाई आर यू गाइज हियर, ठीक है. द मेन रीजन आप लोग आज यहाँ पर हो या हमने ये कंडक्ट किया है, इसलिए नहीं ताकि हमारी रिसोर्सेज वेस्ट हो, बट इंस्टेड ताकि आपको एक गाइडेड पाथ मिले कि उन जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको कैसे यूज करना है, ठीक है. ऐसे आपके सामने बहुत सारे इवेंट्स आएंगे, बहुत सारे वेबिनार्स आएंगे, सेमिनार्स आएंगे. अगर आप एक बारी अपनी थोड़ी सी स्टडी करो कि इनके स्पीकर्स कौन है, क्या वो वेबिनार्स वर्थ अटेंडिंग है, राइट. Okay, so like sorry, थोड़ा off topic हो गया था, but yeah, when to learn. So when to learn, the answer is today, right now, ठीक है. Now the best time to learn is right away, ठीक है. मतलब अगर आप लोग अभी ये सेशन अटेंड कर रहे हो, so I believe कि आप लोगों के अंदर वो sincerity है, इतनी कीननेस है कि आप अपनी जर्नी बिगिन करने के लिए आगे देखना चाहते हो कि उस जो अपकमिंग आपकी जर्नी है वो वेस्ट ना हो, वो अच्छी जाए, राइट. सो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आई जस्ट से हियर, प्रोक्रेस्टिनेट मत करो, ठीक है. जो भी आप अपना कुछ चीज स्टार्ट करना चाहते हो उसको कर लो, ठीक है. स्टैक मत करो चीजों को.
ओके स्टैक मत करो चीजों को, जो भी आपके पास चीजें आ रही हैं उनको स्टार्ट कर दो, ठीक है, एकदम से उनको स्टार्ट कर दो। अगर आज हम आपको अभी जो बताने वाले हैं, थोड़ा जो टेक्निकल पार्ट आने वाला है, तो अभी जो हम वो बताने वाले हैं आपको, उसको स्टार्ट कर दो वर्क करना, ओके उसके ऊपर। Alright, so what to learn? Now the most important part पर आ गए हम, what to learn. Please आप लोग थोड़ा note भी कर सकते हो इसको, and you guys can like I think it's being recorded. Okay, so yeah, no problem. Okay, so the first step is prepare yourself. Okay, prepare yourself say I mean is that know where you are. आप एक बार ये देखो कि कहाँ पर स्टैंड करते हो, ठीक है, आपके पास अभी हाथ में है क्या, आप कितना गेन कर सकते हो, कितना गेन आप आपको करना चाहिए, बिकॉज ओवर ईटिंग नहीं करनी है हमें। जो सामने दिख रहा है, ठीक है, जावा पढ़नी है, चलो आज जावा को कोई वेबिनार ले रहा है, चलो हम जावा पढ़ लेते हैं, चलो आज कोई पाइथन कर ले रहा है, पाइथन कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं करना है। डोंट ओवर ईट एवरीथिंग, जो सामने दिख रहा है उसको नहीं खाना है, ओके। नेक्स्ट थिंग, जो आपके प्लेटर में, मतलब जो किसी और के प्लेटर में आपको दिख रहा है, उसको नहीं खाना है, ठीक है। अपने ऊपर बिलीव रखो, अपने ऊपर थोड़ा सा भरोसा रखो, ऑलराइट। आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे कि हाँ ये शायद मेरे लिए सही चीज है, मुझे इस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, व्हाई नॉट ट्राई दिस थिंग, ठीक है। लेकिन अपने हिसाब से चलो, बिलीव इन योरसेल्फ एंड स्टे हंग्री, ठीक है। अपने आप को ओपन रखो टू ऑल द चैलेंजेस दैट यू आर गोइंग टू फेस। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेप अप एंड ग्रैब द अपॉर्चुनिटीज जो आपको सामने दिख रही है। आज ये वेबिनार है एंड यू पीपल आर हियर, व्हिच मींस यू हैव दैट इनसाइड यू कि आपको कुछ लेना है, आपको कुछ एक्सेप्ट करना है, राइट। सो ऐसी ही चीज आपको आगे जाकर भी करनी है, राइट। अभी आपके पास बहुत सारे हैकेथॉन्स आएंगे, बहुत सारे इवेंट्स आएंगे। एज ईशांत हैज ऑलरेडी मेंशन, ये थोड़ा सा टेक सेशन होने वाला है एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल द टेक्निकल थिंग्स हियर। सो गोइंग इन द सेम लेन, आप लोग हैकेथॉन्स आते हैं या कोई भी कॉन्टेस्ट आते हैं, चाहे गूगल के कॉन्टेस्ट, व्हेन यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, गो देयर, ठीक है, अटेंड करो उसको। अटेंड करने से क्या होगा, आपको नई चीजें पता चलेंगी, दैट इज हाउ यू लर्न, ठीक है। एंड मतलब ये वाली चीज है कि आपको क्या करना चाहिए, ये हम सबको मतलब पता होता है कि क्या करनी चाहिए, बट एग्जैक्टली किस ईयर में किस तरह हमें किसी चीज को उठाना चाहिए, राइट। ये सारी चीजें हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऑल्सो फर्स्ट ईयर में आए हो अभी आप लोग, सो इट इज ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग एंड फाइंडिंग योरसेल्फ, राइट। सो डू नॉट वेस्ट इट, एज ऑलरेडी वो ईशांत ने भी हमें बताया कि देयर विल बी फिजिक्स, देयर विल बी केमिस्ट्री एंड देयर विल बी व्हाट नॉट थिंग्स जो बिल्कुल आगे कहीं आपके शायद काम ना आए, ठीक है। तो उन पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। दिस इज नो मोर स्कूल, यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर कि ये 4 साल बाद एक ऐसी लाइफ स्टार्ट हो जाने वाली है जहां पर आप पीछे मुड़ के नहीं देख सकते हो, राइट। सो नाउ इज द टाइम, एक्सप्लोर योर सेल्फ, फाइंड योर सेल्फ, ठीक है, बट डू नॉट लूज योर सेल्फ इन दैट प्रोसेस, राइट। देन try one thing at a time, please, this is very important। सब कुछ एक बारी में मत खाना, ठीक है, एक बारी में एक चीज कोशिश करो, एक चीज समझो। अगर आप अभी कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हो, जिसको हम सीपी बोलेंगे, ठीक है, तो अगर आप सीपी कर रहे हो तो जस्ट डू सीपी एट अ टाइम। उसमें उसके साथ ही डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हुए हैं एंड उसी के साथ आपने सब कुछ स्टार्ट किया हुआ है। प्लीज डोंट मेस अप योर प्लेटर, अपनी प्लेट को ऐसे सब कुछ चीजों से मत भर दो। शादी में जाते हो तो भी एक एक करके चीजें उठाते हो ना, क्योंकि अभी है आपके पास पूरा टाइम है, आराम से आप घूम सकते हो, आराम से आप उठा सकते हो चीजें, एक एक करके ही उठाना है। लेकिन नेक्स्ट थिंग इज टेक पार्ट इन द एक्टिविटीज इनसाइड एंड आउटसाइड द कॉलेज and meet new people, get inspiration, bond over tea, okay, and learn from your colleagues। अपने classmates के साथ collaborate करो, projects पे collaborate करो, ठीक है। अभी I know that it is a very tough time for you people, क्योंकि आप लोग already ही अपने classmates को नहीं जानते हो, everyone is from completely different environment maybe, right। So just talk to them, okay, start, initiate the conversation, कोलैबोरेट करो, प्रोजेक्ट्स करो। फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम जो है कोई सी भी लैंग्वेज लर्न करो, ठीक है। एंड सेकेंड सेमेस्टर में अपना डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स अगर आपके करिकुलम में आता है, देन यू गेट स्टार्टेड विद इट।
और आप प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। सो फर्स्ट सेम और फर्स्ट ईयर, एज आई एम अबाउट टू कंक्लूड अबाउट द फर्स्ट ईयर कि आपको इसमें क्या करना चाहिए। So first year में what you need to do is learn any language and secondly get started on some project, ठीक है, because first year is very chill, मतलब बहुत बिल्कुल chill out होता है, इसमें आपको कुछ इतना ज्यादा नहीं करना है, ना आपके ऊपर बर्डन है कि अब इस सेमेस्टर तो तुम्हारी जॉब लगनी है या तुम्हारी कंपनीज आनी है, कुछ नहीं है, इस सेमेस्टर आपका बहुत चिल है, ठीक है। सो बहुत आराम से अपने पेस पर चलो, लेकिन प्रोक्रेस्टिनेट मत करो, ठीक है, कि हम कल ये काम करेंगे। अगर हम आज ये सेशन ले रहे हैं, सो मेक अ पॉइंट कि आप आज ही कुछ रिसर्च करो, फाइंड आउट करो कि मेरे लिए क्या क्या चीजें अप्रोप्रिएट हैं, ठीक है। एंड मतलब ऐसी बात नहीं है कि अगर आप केवल टेक्निकल बैकग्राउंड से हो, मतलब अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं हो, अगर आप थोड़े कोर ब्रांचेस के हो, तो भी आप अपने लिए सर्च करो कि क्या चीजें मेरे लिए अभी बेनिफिशियल है, मुझे किस चीज से स्टार्ट करना चाहिए अपने अराउंड। मतलब बेसिकली सी एक ही टैलेंट होता है जो बच्चे प्लेस हो जाते हैं या जिनकी इंटर्न्स लग जाती हैं, जो बहुत अच्छे होते हैं डेवलपमेंट में या सीपी में, एक ही चीज उन सबके अंदर कॉमन होती है, एंड दैट इज वेरी इजी टू डू, ठीक है, वेरी इजी टू लर्न, एंड दैट इज गूगल सर्च या बिंग सर्च या जॉन सा भी आप यूज करते हो। The most important thing is start learning या start knowing how to search before asking कि hey ईशान यार मेरे को NLP बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, मतलब मैंने ट्राई भी नहीं किया है, and I'm asking him directly कि यार मेरे को ये बता दे कि वीडियोस कहाँ से देखनी है, ये कहाँ से देखना है। First try it yourself, okay? Don't just jump up to people कि यार मेरे को ये तो आ ही नहीं रहा है, तुमने ट्राई ही नहीं किया, नहीं आएगा तुम्हें, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग सर्च करना सीखो, ठीक है, करेक्ट तरीके से सर्च करना सीखो, ठीक है। नो वन विल टेल यू एनीथिंग यहाँ पर अंटिल आप किसी से पूछते हो। अगर आप किसी के पास जाते हो, वंस यू हैव डन योर पार्ट ऑफ द जॉब, काइंडली मेक इट अ पॉइंट कि आप किसी से फर्दर कंसल्ट भी कर रहे हो कि क्या ये सही है, क्या ये प्रोसीजर सही जा रहे हैं हम, ठीक है। एंड ओके, नाउ ओवर टू द सेकेंड ईयर की बात करते हैं। तो थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में आपको क्या करना चाहिए, गो एंड स्टार्ट योर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, ठीक है। सेकेंड ईयर इज ऑल अबाउट लर्निंग कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, ठीक है, कंप्यूटर हमारी चीजों को कैसे समझता है, क्या हमें उससे निकलवाना है, हमारा मेन पर्पस क्या है, उस कंप्यूटर से बात करनी है, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग द वेरियस फील्ड्स एंड स्टार्ट मेकिंग द प्रोजेक्ट्स, राइट। एंड द नेक्स्ट इज concentrate on both CP and the field that you choose, all right. Next, decide which field you want to go into. तो आपका जो थर्ड सेमेस्टर और जो फोर्थ सेमेस्टर होगा, उसके अंदर प्लीज मेक श्योर जो आपका सेकेंड ईयर है कि आप डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट कर दो, ओके। हाई टाइम हो जाता है कि अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर्स और सीपी करनी स्टार्ट नहीं की है। इट इज डेफिनेटली लाइक कन्वीनियंट एंड बहुत अच्छी चीज होगी कि अगर आपने सेकेंड सेमेस्टर से ही सीपी में थोड़ा बहुत एरेज या लिंक लिस्ट से स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। एंड डोंट गेट ओवरवेल्म्ड, जो भी हम न्यू टर्म्स यहाँ पर यूज कर रहे हैं कि ओ माय गॉड ये क्या बोल दिया आज, तो वंस अगेन ये आपका होमवर्क हो गया, ठीक है। गो एंड सर्च, जो भी चीज आपको नई न्यू मिलती है, राइट, जस्ट गो एंड सर्च, ओके। फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर, दैट इज योर थर्ड ईयर, इंक्लूड्स दैट आप ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस करो, ठीक है। ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या होते हैं, दैट्स योर होमवर्क टुडे, गो एंड सर्च। And another very important thing is build impactful projects, right? बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, ऑलरेडी इतनी ज्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है कि आपके आते आते आप जो प्रोजेक्ट के बारे में सोचना भी स्टार्ट नहीं किया होगा, वो प्रोजेक्ट पता नहीं कब का बन चुका होगा, राइट। सो प्लीज ऐसे अपने आप में एक ऐसी क्वालिटी इनकलकेट कर लो कि आप कुछ इम्पैक्ट करो सोसाइटी को, ठीक है, कुछ गिव बैक करो सोसाइटी को। फाइनली यू आर इन सच अ गुड यूनिवर्सिटी, इन सच अ गुड कॉलेज, राइट। सो प्लीज डू नॉट वेस्ट योर टाइम, प्लीज डू नॉट प्रोक्रेस्टिनेट एंड डू नॉट स्टैक थिंग्स अप, okay. Seventh and eighth semester, get placed in your dream company and guide your juniors on how to make the best use of your 4 years, okay. Ishant, would you like to continue? Yeah.
थैंक यू। सो अभी तक हमने बताया कि आपको कॉलेज में क्या करना चाहिए, तो अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कॉलेज में नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो पहली चीज कि फेल नहीं होना है, मतलब फेल हो जाते हैं कई बच्चे, अगर हो जाओ तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट ट्राई करना है कि नहीं होना है फेल। अपनी सीजीपीए को 7.5 से नीचे नहीं जाने देना है। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर कंपनीज में एक थ्रेशोल्ड होता है कि अगर किसी बच्चे की 7.5 से कम सीजीपीए है तो वो शायद उसको टेस्ट के लिए ना बिठाएं, उसको इंटर्न के लिए एलिजिबल ना करें शायद। तो वो कुछ क्राइटेरिया को पार करने के लिए आपको ये इंश्योर करना होता है कि आप एक कोई सब्जेक्ट में फेल ना हो और आपकी सीजीपीए एक सर्टेन पॉइंटर से ज़्यादा हो। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो बच्चे फेल हो जाते हैं या फिर जिसकी सीजीपीए 7.4 होती है वो कामयाब नहीं हो सकता, ऐसा इसका मतलब बिल्कुल नहीं है। ये बस वो चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जो हो सकती हैं कि किसी पॉइंट पर जाके गलत चली जाए, तो आपको नहीं जाने देनी है गलत को। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि कॉलेजेस में काफी ज्यादा सोसाइटीज होती हैं, क्लब्स होते हैं। तो लोग क्या होते हैं कि फर्स्ट ईयर में क्या करते हैं कि यार मेरे को यहाँ भी जाना है, मेरे को वहां भी जाना है, मेरे को ये भी करना है, मेरे को वो भी करना है। तो आपको एक साथ 5 क्लब में रहकर अब आप कहीं एक क्लब पे ध्यान भी नहीं लगा पा रहे हो, कुछ सीख भी नहीं पा रहे हो, और ना किसी की मीटिंग अटेंड कर पा रहे हो, ना किसी से कनेक्ट कर पा रहे हो, तो वो नहीं करना है। 10 जगहों पे जाके मतलब अपना दिमाग डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है कहीं पे भी। उससे अच्छा किसी एक क्लब में रहो जहाँ पे तुम्हारा मनपसंद का काम होता हो, जहाँ पे तुम्हारी ग्रोथ होती हो, जहाँ पे तुम्हारे पसंद के लोग हों। एक क्लब या 2 क्लब, जहाँ भी सोसाइटीज हो गई जो भी। तो ऐसे एक या 2 क्लास में रह के आप अपनी ग्रोथ देख सकते हैं। ज्यादा क्लास में रहोगे तो सिर्फ दिमाग डिस्ट्रैक्ट रहेगा, कभी फोकस नहीं कर पाओगे। उसके बाद ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि कॉलेज में ना हर बंदा एक जैसा नहीं होता है। अब जैसे यहाँ पे इस मीटिंग में 40 लोग हैं इस टाइम पे, तो यानी कि तुम 40 लोगों को ये पता करना है कि मुझे क्या करना चाहिए अपने 4 सालों का यूज करने के लिए। बाकी 60 लोग होंगे, 70 लोग होंगे, 80 लोग होंगे तुम्हारी क्लास में जिनको नहीं पता करना ये। तो वो फर्क होता है कि लोग जो कुछ करना चाहते हैं, लोग जो कुछ नहीं करना चाहते। ठीक है, मैं रूड नहीं साउंड करना चाह रहा है यहाँ पे, बट ऐसा होता है। इंजीनियरिंग कॉलेजेस में बहुत से लोग सिर्फ टाइम पास करने आते हैं, उन लोगों से दूर रहना है, क्योंकि आप जैसे लोगों के साथ रहोगे आप वैसे ही हो जाओगे। ठीक है। और लास्ट पॉइंट, और ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, never let anyone tell you that you are not good enough just because you are from a certain branch or you are from a certain college. ये काफी ज्यादा चलता है कि तुम इस ब्रांच से हो तो तुम इस ब्रांच का काम नहीं कर सकते, तुम इस कॉलेज से हो तो तुम अच्छे नहीं हो, तुम इस कॉलेज से हो तुम अच्छे हो। ऐसा कुछ नहीं होता है। सब डिपेंड करता है तुम्हारी मेहनत पे कि तुम कितना काम करते हो, तुम कैसे लोगों के साथ रहते हो, तुम कैसे लोगों के साथ काम करते हो। तो नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे अब। So this slide is a summary of all the things that we have told you in all the last slides. कि फर्स्ट ईयर में क्या करना होता है, सेकंड ईयर में क्या करना होता है, थर्ड ईयर में और फोर्थ ईयर में। अगर तुम्हें समरी चाहिए तो तुम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि ये ट्रैक होना चाहिए तुम्हारा। So we will go to last slide now. So this is the last slide. The only mantra for doing engineering is keep calm and stay hungry, because you will need to keep calm in engineering. और अब हम आपके डाउट्स लेंगे। आपने कुछ क्वेरीज भी दी थी जो जिसका हम जवाब देंगे अब। और अगर आप में से कोई अभी नहीं पूछना चाहता है, अभी कुछ दिमाग में नहीं आ रहा है, तो आप हमें अपनी क्वेरी इस मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको चाहिए तो अगर आपको कुछ भी क्वेरी होती है, कुछ पूछना है, कुछ बात करनी है, किसी तरह की गाइडेंस चाहिए, तो आप कभी भी मेल कर सकते हैं किसी भी टाइम। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। और अब हम आपने कुछ क्वेरी दी थी उनका आंसर करेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू यूटिलाइज योर 4 years, जिसका हम जवाब दे चुके हैं इस पूरी पीपीटी के फॉर्म में।
Second question is how to make connections in college. How to make good connections in college. या शुभम झा ने एक क्वेश्चन पूछा है एंड ये क्वेश्चन हमारे पास है तो हम इसका जवाब देंगे थोड़ी देर बाद में. या तो अभी का क्वेश्चन है कि हाउ टू मेक कनेक्शंस इन कॉलेज. ओके, सो कनेक्शंस के लिए जैसे सेजल ने बताया था कि हैकाथॉन्स में जाओ, कॉम्पिटिशन में पार्ट लो, अपने क्लासमेट से बात करो, क्लासमेट्स के दोस्तों से बात करो, लाइक सीनियर से बात करो. तुम जिस क्लब्स में हो, तुम कोडिंग क्लब्स में जाओ, अपने सीनियर से मिलो, लिंक्डइन पे अकाउंट खोलो अपना. तुम्हें जो भी बंदा मिलता है ना कि ये अच्छा काम कर रहा है या फिर इसे मुझसे ज्यादा आता है, तुम उससे बात करके देखो कि तुमने कैसे किया या फिर ये कैसे कर सकते हैं. तुम जब तक बात नहीं करोगे ना तो तुम कनेक्ट कैसे करोगे. मैं यहाँ पर 2 बंदों को जानता हूँ इस मीटिंग में जिनको मैं ऑनलाइन मिला हूँ सिर्फ, ठीक है, जिनको मतलब मैंने आज तक देखा नहीं है बट मैं उनसे बातें करता हूँ रेगुलरली और मैं उनको जानता हूँ अच्छी तरह से. ओके, सो इस तरह से तुम्हें कनेक्ट करना होता है लोगों के साथ. अब भले अपने कॉलेज में करो, भले लिंक्डइन पे करो, तो कनेक्ट करने के लिए लोगों से बातें करनी पड़ती हैं. तो अपने दोस्तों से, अपने दोस्तों के दोस्तों से जो अच्छा काम कर रहे हैं उनसे बातें करोगे तो कनेक्शन बन जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू गेट गुड प्लेसमेंट्स और गुड इंटर्नशिप्स. आई थिंक सेजल इसका जवाब मुझसे ज्यादा अच्छी तरह दे पाएगी. सो सेजल, ओवर टू यू. See, how to get good placements के लिए कोई ऐसे मंत्रा नहीं होता है. The only mantra is keep working hard, believe in yourself, stop procrastinating. ठीक है, यही कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं कि आपको बस काम करते रहना है. ठीक है, स्टे हंग्री ऑल द टाइम. अपना प्लेटर कभी फुल मत होने देना, सेटिस्फाइड मत रहना. ठीक है, कभी किसी चीज से. और जो आपको चीज आती है या आप कोई चीज सीख रहे हो, आई हैव लर्न दिस फ्रॉम ईशांत ऑल्सो, कि ही मतलब वो हर एक चीज बहुत डेप्थ में करता है. जब तक उसको वो चीज समझ नहीं आ रही है ना, मतलब ही स्टिल ऑन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, वो अभी सीख रहा है, आई होप सो. सो मतलब वो इतने टाइम से सिर्फ उसने अपनी पकड़ इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा है दैट आपको बस एक यही मेन चीज अपने अंदर लेकर चलना है कि कोई भी चीज अधूरी नहीं छोड़नी है. ठीक है, अगर इंटर्नशिप्स या इंटरव्यूज में उन्होंने आपसे कोई किसी एक चीज से रिलेटेड चीज पूछ ली, कोई क्वेश्चन पूछ लिया, जस्ट मेक श्योर कि वो चीज आपको बहुत ढंग से आती हो. ठीक है, एंड डेफिनेटली अपने आप को ओपन रखो. एंड ओपन इन द सेंस कि आप लोग न्यू चीजें एक्सप्लोर करो, न्यू चीजें फाइंड आउट करो, लर्न करो. एंड आई एम ऑल्सो सीइंग अ क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट फ्रॉम सोहम. We are learning C language, so when should I start C++ or Java? Thank you Soham for the question. यहाँ पर एक बहुत ही important बात I'll say also. Shubhankar has also written the same question. Which language should we learn in first semester? C. लैंग्वेज से कोई फर्क नहीं पड़ता. आप लोग डेफिनेटली सी से स्टार्ट करो, फिर फर्दर धीरे धीरे C++ पे स्विच ओवर हो जाओ. ठीक है, द बेस्ट बुक टू रेफर दैट इज बालागुरु स्वामी. ठीक है, आप लोग उसको परचेज कर सकते हो. उसकी ई बुक्स डेफिनेटली अवेलेबल होती हैं वैसे भी ऑनलाइन, राइट. सो गो टू द लाइक ऐसी बुक्स पढ़ो. ठीक है, एंड इस पे कोई फोकस नहीं करेगा यहाँ पर. आज अगर आप लोग अटेंड कर रहे हो, सो प्लीज मेक श्योर कि आप इस पे फोकस नहीं कर रहे हो कि मुझे कौन सी लैंग्वेज सीखनी है. ठीक है, आप लोगों को जौन सी भी एटलीस्ट एक लैंग्वेज में तो डेफिनेटली मास्टर करना है. या तो आप C++ ले लो, या आप पाइथन ले लो, या आप जावा ले लो. बट इनमें से अगर आपने कोई सी भी एक लैंग्वेज में अपना मास्टर कर लिया है, मेक श्योर कि उस लैंग्वेज को आप ढंग से जानते हो और इधर उधर किसी लैंग्वेज पे स्विच करने की जरूरत नहीं है. फिर अगर मुझे कंप्यूटर से बात करनी है, मुझे एक लैंग्वेज आती है. अगर मुझे अभी आप लोगों से बात करनी है, मुझे हिंदी आती है, तो बस खत्म. मुझे उसके लिए स्पेनिश, फ्रेंच सब कुछ सीखने की जरूरत थोड़ी है. ठीक है, और जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे, जैसे जैसे आई मीन आप नेक्स्ट ईयर्स में जाते जाओगे, आप डेफिनेटली अपने आप को एक्सप्लोर तो करोगे ही. ओके, दैट्स वेरी गुड अंकित, यू यूजिंग दैट बुक. And see,
कोई कभी डेवलपमेंट खत्म नहीं होगी, कभी लैंग्वेजेस खत्म नहीं होंगी। आप आज एक नई चीज पढ़ोगे, कल 10 नई चीजें और आ जाएंगी, ठीक है, मार्केट में। सो जस्ट मेक श्योर कि आपको कॉन्सेप्ट्स ढंग से समझ में आ रहे हो, आपको तरीका पता हो कि कंप्यूटर से कोई बात निकलवानी है तो किस तरह से निकलवानी है, ठीक है। सो विल नेवर गो वेस्ट, आपके अंदर एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा उस लैंग्वेज का। बट अगर आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में पीछे हो, अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स में ही दिक्कत आ रही होगी, देन इट विल बी अ प्रॉब्लम, ठीक है। सो मेक श्योर कि सेकेंड सेमेस्टर के एंड में आते आते या थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट होते होते आप लोग इंटर्नशिप्स और प्लेसमेंट्स के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो, विच इज कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, ओके। The next question was what is the best time for doing the internship? I don't think so अभी आप लोगों को उसके लिए वरी करने की जरूरत है। This is no time to worry for that, okay? आप लोग अभी आराम से अपना बैठ के एक्सप्लोर करो, जितनी अपॉर्चुनिटीज आप लोगों को सामने दिखती हैं उनको ग्रैब करो। One more thing, while I was speaking with Ishant, he told me कि काफी लोग अपने रेज्यूमे में कैंपस एम्बेसडर ऐसी चीजें लिख देते हैं, ठीक है। आप लोगों को ऐसी चीजों के पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। कैंपस एम्बेसडर्स एंड ये सारे मतलब जो जहां पर आपका मैनेजमेंट स्किल ज्यादा है, इफ यू वांट, अगर आप बहुत ज्यादा विलिंग हो ऐसा काम करने के लिए, देन दैट इज रियली वेरी गुड, ओके। बट अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि बस मेरे पास अभी कोई काम नहीं है तो लेट अस डू कैंपस एम्बेसडर थिंग, देन दैट इज नॉट वर्थ इट, ठीक है। इंस्टेंट आप टेक्निकल असिस्टेंट्स बन सकते हो, मेनी ऑनलाइन कोडिंग प्रेपरेशन जगह कराते हैं, ठीक है, टीचिंग असिस्टेंट्स बनाते हैं। सो मेक श्योर कि आप वहां पर जा सकते हो इंस्टेड ऑफ कैंपस एम्बेसडर, ठीक है। एंड देयर आर सम ओवरवेलमिंग क्वेश्चंस आ रहे हैं, हाउ टू अप्लाई फॉर इंटर्नशिप्स। आप लोग तो अभी शायद सिर्फ फ्रेशर्स हो, राइट? सो अभी बिल्कुल कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, शुभम, ठीक है। एंड next question would be, what advice would you give to your past selves when you were fresher? Okay, Ishant, would you like to answer that? Yeah. So my first advice would be to change my branch. Obviously. Yeah. No, okay. So on a serious note, my advice to my past self would be to start things, because I remember in my first year, I almost spent my whole year like doing nothing. I did almost nothing in my first year. I learned C only. I didn't do CP or anything. मैंने सिर्फ C लैंग्वेज सीखी थी, नॉट इवन C++. सो मैं C में रह गया था बस। तो जो मेरी एडवाइस होगी अपने फर्स्ट ईयर को, वो होगी कि एक्सप्लोर करो कि मुझे पसंद क्या है, क्योंकि मुझे नहीं पता था अपने फोर्थ सेमेस्टर तक भी कि मुझे एक्चुअली करना क्या है इंजीनियरिंग में। मैं किसी और ब्रांच से था, कर कुछ और रहा था, करना कुछ और चाहता था। तो मेरी एडवाइस यही होगी कि एक्सप्लोर करना शुरू करो, बैठे नहीं रहना है कि हाँ जो कॉलेज में करा रहे हैं मेरे को वही करना है, उससे कुछ नहीं होगा। बहुत कुछ है इस दुनिया में, इंजीनियरिंग की फील्ड में बहुत कुछ है जो कि तुम सीखोगे, और क्या पता हमेशा सीखते रहो, कभी आए भी ना तुम्हें वो। बहुत चीजें हैं जो नहीं आती हैं कभी भी, उसमें मतलब इतना ज्यादा है कि तुम कभी उसको पूरा कर ही नहीं पाओगे। सो फील्ड्स को एक्सप्लोर करो कि कौन सी फील्ड तुम्हारे लिए बेस्ट है एंड उसमें कितनी मेहनत करने की जरूरत है मुझे, एंड उसके हिसाब से पढ़ना शुरू करो फर्स्ट ईयर से ही। सो मेरी एडवाइस यही होगी कि तुम अभी से पढ़ना शुरू करो। So the next question is, how to manage time between studies and other activities? Okay, so I guess Sejal would be a better person to answer this. What advice would you give to your could you please repeat the question? I was answering the question, I didn't hear you. Yeah, okay. How to manage time between studies and other activities? Fine. So see, time management is the most important thing, ठीक है। अपना जो आप टाइम यूज करते हो, प्लीज मेक श्योर कि आप अभी हमने जैसे आपको एक प्रॉपरली दिखाया था कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको ये करना चाहिए, सेकंड सेमेस्टर में आपको ये करना चाहिए। फर्दरमोर आप उसको अपने लिए बाइफिकेट करो, अपने लिए जो आपका कंफर्टेबल लेवल है। बट कंफर्टेबल लेवल से मतलब ये नहीं है कि आप लेजी बन जाओ, ठीक है, प्रोक्रेस्टिनेट करना स्टार्ट कर दो। इंस्टेड
आप अपने लिए एक थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बट इजी टाइम टेबल बनाओ, ठीक है। फिर टाइम टेबल ऐसा नहीं है कि 10 साढ़े 10 से और ये वाला काम टाइम टेबल नहीं। टाइम मैनेजमेंट से यहाँ पर व्हाट आई मीन इज कि आपको पता होना चाहिए कि अभी सीपी ही करनी है मुझे, या फिर अभी अगर आई एम वर्किंग ऑन डेवलपमेंट, सो आई हैव टू बी फोकस्ड, कंप्लीटली फोकस्ड ऑन व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट आई एम प्रिटी श्योर कि एक बारी आप कहीं पे थोड़ा सा लैग करना स्टार्ट करोगे तो आपको खुद से रियलाइज होना स्टार्ट हो जाएगा कि ओके दिस इज द हाई टाइम, अब मैंने थोड़ा सा अपना टाइम वेस्ट कर दिया है, ठीक है। लेकिन उसके साथ आपको एक और चीज याद रखनी है कि वो अपने अंदर एक्टिविटी होते रहने देना, जो एक अंदर से एक कुछ कॉन्शियस होती है दैट सेज कि नो दिस इज नॉट द टाइम फॉर यू टू प्रोकेस्टिनेट और कुछ मजे करने हैं, नहीं अभी ये टाइम नहीं है, ठीक है। तो जो भी आपको सही लगता है उस टाइम पे वही वो काम करो डेफिनेटली, ठीक है। बट मतलब टाइम मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट आप काम कैसे करते हो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप दूसरी एक्टिविटीज में काम नहीं कर सकते हो, या फिर अगर आपको भी लगता है कि अभी आप क्लब्स में ज्वाइन करने के लिए आपके पास इतना टाइम नहीं है, डेफिनेटली डोंट ज्वाइन इट, ठीक है। पीयर प्रेशर पे कोई काम नहीं करना है। और स्टडीज और मैनेजमेंट और टाइम और ये सब स्कूल नहीं है, ठीक है। आप मजे करो अपना, ठीक है। अपना आपका फर्स्ट ईयर है, मजे भी करो, लेकिन उसके साथ साथ अपने आप को डोंट लूज योर सेल्फ इन द प्रोसेस, ठीक है। डीमोटिवेट नहीं होना है, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। सो जस्ट कीप योर हैंड्स अप, हैंग टाइट, काम करते रहो, प्रोक्रेस्टिनेट मत करो, ठीक है। एम्बिशियस रहो, दैट इज द ओनली थिंग जो आपको टाइम मैनेजमेंट अपने आप करा देगा। गोल सीकिंग रहो, ठीक है। अपना खुद से गोल ओरिएंटेड रहो, ठीक है। अगेन हैव फन, प्लस मतलब प्लस प्लस हैव फन। The next question is, what are some new age technologies like AI, ML, ethical hacking, robotics? How to learn them? Okay, so बहुत ज़्यादा ही new चीजें आ रही हैं, बहुत ज़्यादा new technologies आ रही हैं, which are actually overwhelming, ठीक है। फर्स्ट ईयर में आप आते हो, आप देखते हो माय गॉड ये तो एक भैया पूरा सी है, इसको हम कैसे पार करेंगे। बट याद रखना पार तुम्हें ही करना है इसको, ठीक है, और पूरा पार करना है, तो उसके लिए मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी। फर्स्ट ईयर बहुत चिल ईयर होता है, तो कोशिश करो कि उसको जाने मत देना, ठीक है। हमने सिर्फ ये फ्रेशर्स के लिए थोड़ा फ्रेशर ओरिएंटेड इसलिए और अभी इस टाइम पे इसलिए रखा है क्योंकि हमें थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अगर हमें ये गाइडेंस उस टाइम पे मिली होती तो डेफिनेटली हम शायद आज से थोड़ा सा और बेटर हो सकते थे, ठीक है। सो अपना फर्स्ट ईयर मत जाने दो, ठीक है। एंड आई नो इट्स अ लिटिल टफ टू बर्स्ट दैट बबल सिंस आप लोग कॉलेज में नहीं हो, ठीक है। आपको प्रोटेक्टेड अभी भी फील हो रहा है, बट कॉलेज इज नॉट easy, okay, it's very easy to let it go, but it's not easy to you know उस स्ट्रीम को पार करना बिल्कुल easy नहीं है। so just hang tight, हो कि आप ये काम कर सकते हो। अभी आगे चलते चलते आप लोग बहुत ज्यादा डीमोटिवेट भी हो जाओगे। सो प्लीज अगेन द सेम थिंग्स, काम करते रहो, हार्ड वर्क इज द ओनली थिंग दैट विल हेल्प यू थ्रू द सी, ओके। एंड या जो न्यू एज टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उनको लर्न करने का क्या तरीका है, उनको लर्न करने का यही तरीका है कि आप स्टेप बाय स्टेप अपना काम करना स्टार्ट करो, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे हैं हमें किस लैंग्वेज से स्टार्ट करना चाहिए, राइट। एक लैंग्वेज से स्टार्ट करो, उसको पकड़ो, एक बार आपने उसमें थोड़ा सा हेड स्टार्ट मिल गया, एक प्रोजेक्ट बना लो उसमें छोटा सा, ठीक है। एंड आई प्रेफर कि अब आप लोग स्ट्रेट अवे पाइथन पे स्विच कर सकते हो इंस्टेड ऑफ लर्निंग लाइक C++ या सी। मतलब अभी आपके करिकुलम में तो चल ही रहा है सी, तो उसके साथ आप थोड़ा सा पाइथन में स्टार्ट कर सकते हो ना। व्हाई आई एम सेइंग यू टू स्विच टू पाइथन, अभी तो मैंने कहा था एक लैंग्वेज इनफ है, बिकॉज सी में डेवलपमेंट काफी आउटडेटेड हो चुकी है, ठीक है। सो स्विच टू पाइथन, पाइथन में आप डेवलपमेंट करो, ठीक है। एंड धीरे धीरे करके एकदम से AI, ML, रोबोटिक्स ऐसे ऐसे आपने हमें क्वेश्चंस दे रखे थे, हम ही लोग डर गए ठीक है। आराम से
जो भी चीजें आपके सामने आती है उनको ग्रैब करो, आराम से करो, ठीक है। अपने अपने ऊपर इतना ज्यादा बर्डन नहीं डालना कि ये भी करना है, ये भी करना है, नहीं, ओके। यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अनुष्का अनुष्का दत्ता ने पूछा है that I was a bio student in my +2 and now I am in CSE. So there are a lot of students who already had computer science in their +2. So they know much more than me. So can you suggest how can I compete with them? And the same doubt is of 2 other students. That's good. या सो उनको मैं कहना चाहूँगा कि यार +2 में तुम्हारे पास अगर कंप्यूटर साइंस थी या फिर नहीं भी थी तो उससे उतना फर्क नहीं पड़ता है। सी मेरे पास कंप्यूटर साइंस नहीं थी, मेरे को कोडिंग बिल्कुल नहीं आती थी। कॉलेज आने से पहले मैंने फर्स्ट ईयर में भी कोडिंग नहीं की है, ठीक है। मैंने कोडिंग ढंग से सेकेंड ईयर में आके स्टार्ट की थी। तो इट्स नेवर टू लेट। अगर तुम्हारे पास बायो थी, तुम्हारे पास सीएससी नहीं थी, तो कोई बात नहीं, तुम अब शुरू कर सकते हो। एक लैंग्वेज सीखने में कितना टाइम लगता है? जितना तुम लगाओगे उतना टाइम लगेगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम 1 महीने में सीख जाओ तो तुम्हें उस हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। तुम 2 महीनों में सीख सकते हो, तुम 3 महीनों में तो एक्सपर्ट बन सकते हो। बिल्कुल एक्सपर्ट तो नहीं, बट काफी अच्छी तरह सीख सकते हो मतलब उस लैंग्वेज को। तो अगर तुम आज शुरू करोगे ना और तुम 3 महीने तक पढ़ोगे उसको ढंग से, तो तुम उसी लेवल पे आ जाओगे जिस लेवल पे वो बाकी सब लोग हैं जिनके पास सीएससी थी +2 में। क्योंकि +2 में वो उतना ही सिखाते हैं जितना तुम 1 महीने में सीखोगे। यहाँ पर 2 लोगों ने हाथ खड़े कर रखे हैं अपने, आई डोंट नो उनको कैसे एड्रेस करना है। लाइक तुम अनम्यूट कर सकते हो खुद को अगर तुम्हें कुछ क्वेश्चन पूछना है तो। आई गेस अगर तुम्हारे मैसेज मिस हो गए हैं तो। प्रदीप पटेल, सौम्यदीप, आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। ओके, नेवर माइंड, आप लोग पूछ लो यहीं पर क्वेश्चंस, हम लोग देख चैट रहे हैं। बॉक्स में डाल लो। ओके, और भी क्वेश्चंस हैं? Okay, who's Manas? Is 5-star enough in courtship to crack companies? Yes, dear, definitely 5-star is more than enough. आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आपके स्टार्स कितने हैं, ठीक है। देखो, एक बात होती है कि आपको खुद से उसके कंसेप्ट्स क्लियर है कि नहीं, क्या आप दूसरे लोग जितना या फिर सब लोग जितना आप क्या एफिशिएंटली काम कर सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये थोड़ा जल्दी हो गया है कि आप लोग अपने इंटर्नशिप्स और प्लेसमेंट्स के बारे में चिंता कर रहे हो। आप लोग अभी आराम से अपना लैंग्वेजेस पे कमांड करो, एक छोटा मोटा प्रोजेक्ट कर लो, ठीक है। फॉर स्टार्टर्स आई विल आल्सो टेल यू कि आप कौन सा प्रोजेक्ट कर सकते हो। देयर आर 3 वेरी हैंडी प्रोजेक्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप एक बेसिक कैलकुलेटर डिजाइन कर सकते हो, या फिर अगर वो थोड़ा ज्यादा छोटा हो गया है तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर अ वेबसाइट, अपनी खुद की वेबसाइट बनाओ, ठीक है। उसमें आप अपना रेज्यूमे डालो, अपना पोर्टफोलियो डालो, ठीक है। आपको क्या क्या चीजें आती हैं उसको धीरे धीरे करके अपडेट कर सकते हो आप। एंड वेबसाइट आप होस्ट भी कर सकते हो। होस्ट करने के लिए देयर आर न्यूमरस फ्री क्लाउड सर्विसेज which you have, and the most used one is Heroku, ठीक है, जहां पर आप अपना कोई भी ऐप या फिर वेबसाइट, ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग स्टार्ट कर सकते हो। एंड एक मोबाइल ऐप बना सकते हो छोटा सा, जिसके अंदर आप लॉग इन करा सकते हो या उसमें आप बटन्स का यूज कर सकते हो, ठीक है। बट आई डू वांट टू, मतलब मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूंगी कि डेफिनेटली कोई एक छोटा मोटा प्रोजेक्ट आप स्टार्ट कर लो। And does the salary of jobs depend upon marks? No, not at all, not at all, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपके अंदर कैपेबिलिटी कितनी है, ठीक है। आप लोग कितने कैपेबल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। मार्क्स इन द सेंस आई एम होपिंग किया यहाँ पर आप अपने कॉलेज मार्क्स की बात कर रहे हो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके कॉलेज मार्क्स कितने हैं, अपने आप को कैपेबल बनाओ इतना, ठीक है। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑल्सो। हेलो दीदी, हाँ जी बोलो।
हम बोल रहे थे कि मीन्स कोडिंग और डेवलपमेंट कौन से ईयर्स में स्टार्ट करना चाहिए, मीन्स किस ईयर में कोडिंग करें और किस ईयर में डेवलपमेंट करना ठीक रहेगा? आप अभी से अपना थोड़ा सा डेवलपमेंट स्टार्ट कर दो, ठीक है। लाइक सेकेंड सेमेस्टर में आपको आपके पास मतलब बहुत बेसिक्स से, लेकिन कम से कम 1 या 2 प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। देखो, एक होता है कि करिकुलम में ही है कि प्रोजेक्ट्स ही बनाने हैं, प्रोजेक्ट्स बनाने ही हैं, तो दैट इज वेरी नाइस। बट अगर आपके करिकुलम में ऐसा नहीं है तो मेक अ पॉइंट कि आप मिनिमम 2 प्रोजेक्ट्स करो। उससे क्या होता है, बहुत हैंडी हो जाते हो, बहुत ओपन हो जाते हो आप डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि हम सीपी कब से स्टार्ट करें। देखो, सीपी हाई टाइम हो जाता है अगर आपने अपना सेकेंड ईयर की स्टार्टिंग में स्टार्ट नहीं की तो, ठीक है। बट आई जनरली लाइक टेल पीपल कि सेकेंड ईयर की स्टार्टिंग में आप अपना प्रॉपरली कोडिंग पे ध्यान दो, और उससे पहले आप अपना लैंग्वेजेस पे ध्यान दो कि क्या आपको लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट पता है। अभी आप लोग शायद एक्सेप्शनल हैंडलिंग और ये सारी चीजें देख रहे होंगे, राइट। सो मेक श्योर कि आप उन चीजों को भी बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ो, दे आर इम्पोर्टेंट। आप जब डेवलपमेंट करने बैठोगे तो आप देखोगे कि एक्सेप्शन हैंडलिंग, थ्रेड्स, ये सारी चीजें, कर्नल्स, ये कितनी इंपॉर्टेंट साउंड करती है, ठीक है। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। where can I use JavaScript? Okay. सी जावास्क्रिप्ट कहाँ पर यूज करते हैं? जावास्क्रिप्ट यूज करते हो वेबसाइट बिल्डिंग के लिए, ओके, एंड गेमिंग के लिए भी आप कर सकते हो, गेम डेवलपमेंट के लिए। बट मोस्टली एंड जनरली वो वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए ही यूज की जाती है, या वेब एप्स अगर आपको बनाने होते हैं। कूल प्रीतम, सॉरी। एंड थैंक यू अंकित, थैंक यू रुचि। एनी मोर क्वेश्चंस? आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, ईशान से पूछ सकते हो। एक्सक्यूज मी, मैं ये पूछना चाहता था कि मेरा मीन्स 11th-12th में मेरा बायोलॉजी था, तो अब मैं जब कॉलेज में आया हूँ, मुझे यहाँ पे मेरा पूरा सी मतलब कॉलेज में इतनी स्पीड में चल रहा है हम लोगों का कि मुझे ग्रैब करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो आप क्या कोई एकदम मतलब बेसिक बुक बता सकते हो जिसे मैं फॉलो कर सकता हूँ, जिससे मैं आगे स्पीड में बढ़ पाऊँ? सॉरी, मैं सुन नहीं पाया। आप कोडिंग की बात कर रहे हो? यस यस। कोडिंग सीपी या अनन्या, आपका भी यहाँ पे क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। सो सी, आपको सीपी स्टार्ट करने के लिए, एज आई हैव सेड कि अभी आप लोगों का फर्स्ट ईयर है, डोंट गेट ओवरवेल्म्ड विद थिंग्स, ठीक है। बहुत सारी चीजें आएंगी, बहुत सारी चीजें आपकी चलती रहेंगी। ईशान ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी हमें कि कॉलेज में जो आपको पढ़ाएंगे उससे आपका इनोवेशन नहीं आएगा, थोड़ा सा क्रिएशन नहीं आएगा आपके माइंड में, ठीक है। सो ठीक, कॉलेज चल रहा है, उसको चलते रहने दो। साथ में अपना सी बाला गुरु स्वामी इज अ वेरी नाइस बुक, सी के लिए उठाइए उसको। एक है बुक लेट अस सी, ओके, लेट अस सी प्लस प्लस LETUSC, ओके, लेट अस सी, एक ये बुक है। आई एम जस्ट राइटिंग हियर इन द, या ईशान, थैंक यू। So let us see and let us C++ and Bala Guru Swami, ये बेस्ट बुक्स है स्टार्टर्स के लिए, ठीक है। इनको रेफर कीजिए। ऑलराइट, ईशान, यू वांट टू ऐड समथिंग टू दिस? नहीं, मैंने लेटर सी यूज की थी, तो आई गेस वो बेस्ट ऑप्शन है अगर तुम्हें शुरू करना है सी के साथ तो। राइट। एंड पर्सनली मुझे बाला गुरु स्वामी इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि उसमें काफी डिटेल्ड तरीके से आपको थोड़ा मेंशन है कि उसमें थ्रेड हैंडलिंग, जो सारी चीजें मतलब हमें लगता है कि शायद इम्पोर्टेंट नहीं है और करिकुलम में भी नहीं की जाती है, उनको काट दिया जाता है सिलेबस से, ठीक है। अभी आपने जो मुझसे क्वेश्चन पूछा था, आई एम सो सॉरी, आई डोंट नो योर नेम, बट आराम से अपने पेस पे चलते रहो, ठीक है। उनके साथ भागने की जरूरत नहीं है, आप आराम से अपने पेस पे चलो, टाइम मैनेज करो, ठीक है। और मेक श्योर कि आप 2 महीने में वो सी की बुक पढ़ लो, ठीक है। उससे क्या होगा? थैंक यू मैम। And Ananya, the question you said was which book should I use to start CP? Okay, CP के लिए आपको किसी बुक की जरूरत नहीं है, आप थोड़ी सी लाइक ऐसे वीडियोस देख सकते हो ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर आइडिया हो जाए कि एग्जैक्टली होता क्या है मतलब क्वेश्चंस में, या फिर कॉन्सेप्ट क्या होता है। फॉर इंस्टेंस
एरेज है अगर, तो आप एरेज में एकदम से समझ नहीं पाते हो कि एग्जैक्टली किस तरह एलोकेट होता है मेमोरी के अंदर, और ये सारी चीजें जो उसके बहुत छोटे छोटे डिटेल्स होते हैं, एक्सक्यूज मी, अगेन वो आपको बुक्स में तो मिल ही जाएगा जो उसके बहुत छोटे डिटेल्स हैं, बट अलोंग विद दैट आप लोग हैकर रैंक या कोड शेफ के बहुत बिगिनर लेवल क्वेश्चंस करने भी स्टार्ट कर सकते हो. ओके, is D Ravichandran for C++ good? Yes, definitely that book is also good. And can I start with Kanitkar? I'm sorry, I haven't heard that name, but कोई book खराब नहीं है, ठीक है, आप किसी भी book के साथ पढ़ना start कर सकते हो. Please उसके reviews जरूर देख लेना, ठीक है, एक बार. Any more questions? Okay, fine. Is only programming necessary for placements? If not, then what are the other necessities? Thank you, Zohir. See, placements और internships के लिए आपकी C++ आपकी competitive program important है, because फॉर इंस्टेंस मान लीजिए कि आप लोग यहाँ पर कैसे आए, ठीक है, आपने कोई एग्जाम क्लियर किया होगा, राइट, आप सबने अपना जेई मेंस दिया होगा, तो वहां पर जेई मेंस कितना इंपॉर्टेंट था, जितना इंपॉर्टेंट वहां पर जेई मेंस था उतना ही इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग है, ठीक है. बिना कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के दैट इज लाइक आपका एक पाथवे है जिससे आप इंटरव्यूज तक में पहुंच जाओ, ठीक है. वो सीधा आपको इंटरव्यूज में किस तरह बुलाते हैं, दैट इज थ्रू सीपी कॉन्टेस्ट. तो वो कॉन्टेस्ट होल्ड करते हैं जो आपके कॉलेज में होता है, ठीक है, एंड उस कॉन्टेस्ट को क्लियर करने के लिए आपको सीपी की नॉलेज होनी चाहिए. वंस यू क्लियर सीपी, तो फर्दर आपको इंटरव्यूज में वो डेवलपमेंट या सीपी के क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है. जनरली हमारे यहाँ वो सीपी के ही क्वेश्चंस पूछते हैं, दे आर नॉट इनटू इवन डेवलपमेंट. अगर आपको सीपी क्लियर है इसका मतलब आपको बेसिक नॉलेज है कि कंप्यूटर से बात कैसे करते हैं, ठीक है. And how can we prepare for GSOC? Okay, that's a very nice question, Pritom. Thank you. There are many such like GSOC is Google Summer of Code, जिनको नहीं पता है. इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं जिसके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो. सी प्रीतम, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बोली थी कि एकदम से किसी से क्वेश्चन मत पूछो. क्या आपने GSOC के लिए पहले से अपने आप से फाइंड आउट किया था कि क्या डिफरेंट चीजें होती हैं, राइट? तो पहले खुद से उसको चेकआउट करो. इतने सारे ब्लॉग्स हैं जो लिखे हुए हैं, ठीक है. बट या डेफिनेटली गिव यू सम टिप्स GSOC के लिए कैसे प्रिपेयर करते हैं. उसके लिए आपको एक लैंग्वेज और एक डेवलपमेंट आनी चाहिए, मतलब डेवलपमेंट आनी चाहिए, ठीक है. सो वंस यू आर थ्रू विद देम, आपको आती है डेवलपमेंट. फर्स्ट ईयर में इट्स अ लिटिल टफ टू गेट इनटू GSOC क्योंकि आपको थोड़ा सा डेवलपमेंट के ऊपर हैंड्स ऑन नहीं होता है. बट इट इज वेरी गुड अगर आप पहले से ही वेल थ्रू हो प्रीतम, तो आप डेफिनेटली GSOC के लिए ट्राई कर सकते हो. उसके लिए इनफिनिट ब्लॉग्स हैं मीडियम पे. ऑल्सो हम ये थोड़ा मेंशन करना भूल गए, मीडियम के ब्लॉग्स पढ़ो, ठीक है. उसमें न्यू टेक्नोलॉजीज के बारे में आता है. टेकगिग के ब्लॉग्स पढ़ सकते हो, उसमें भी हमको यहाँ पे किसी का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं. तो डेफिनेटली ओके, गो फॉर दीज ब्लॉग्स एंड खूब पढ़ो और हार्ड वर्क करो, ठीक है. वही एक चीज है जो आपको थ्रू द सी लेकर जाएगा. ओके, ईशान. या थैंक्स सेजल. सो हमने बहुत सारे डाउट ले लिए हैं. आई थिंक हमारे पास टाइम नहीं है उतना और इसको आगे बढ़ाने का. सो इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन मेल अस. ये आपको ईमेल आईडी दिख रही होंगी स्क्रीन के ऊपर. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड आप हमको मेल कर सकते हैं जो भी आपके डाउट हैं. और अगर किसी को किसी भी तरह की गाइडेंस चाहिए तो वो मेरे को कभी भी किसी टाइम मेल कर सकते हैं. मेरे साथ लिंक्डइन पर कनेक्ट कर सकते हैं, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ. और आई वांट टू थैंक ईशान एंड विंडोलाइम्स for giving us this opportunity to do this session, क्योंकि मैं बहुत टाइम से करना चाहता था और मेरे को नहीं मिल रहा था कोई मीन्स है, सोर्स. तो विंडोलाइंस बहुत ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जो कि ईशान ने बनाया है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो कि इस तरह की गाइडेंस चाहते हैं. तो थैंक यू ईशान.
और अगर आप में से कोई अगर क्रू वर्क ज्वाइन करना चाहता है लाइक एज अ मेंबर, क्योंकि उस पे हम गाइडेंस मिलती है आपको, जैसे कि एक ग्रुप है हमारा क्रू वर्क का, एंड उस पे लाइक आप ज्वाइन हो सकते हैं। आपको कोई भी डाउट हो अगर, तो आपको उसका जवाब मिल जाएगा उसी टाइम पर। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो भी आप मेरे को मेल कर सकते हैं मेरी आईडी पर या फिर क्रू वर्क की आईडी पर। अपना नाम वगैरह बता सकते हैं, अपना फोन नंबर वगैरह बता सकते हैं मेरे को मेल करके, एंड देन मैं आपसे बात करूंगा, एंड देन you can join me at Crework, and then we can there's some questions coming in, but I don't think we can take questions right now. Okay, I can send LinkedIn link, LinkedIn ID's link here, I guess. ऑल्सो जब आप लोग डेवलपमेंट कर रहे हो तो थोड़ा गिटहब और किसी ने क्वेश्चन पूछा हुआ था कि हाउ टू स्टार्ट विद गिटहब, सो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड लाइक कॉम्प्लीमेंट्री टूल होता है जिसमें आप कोलैबोरेट कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड दिस इज हाउ आप लोग एक दूसरे से थोड़ा मतलब आई नो दैट इट्स रियली टफ फॉर यू पीपल क्योंकि आप लोग एक दूसरे से मिले भी नहीं हो. So to immediately start conversation, this is the best way how you can do it. आप लोग development साथ में करो, GitHub use करो. GitHub पे क्या होता है कि आप लोग अपने codes डाल सकते हो and the other person can view it. Okay. So thank you Shant भैया and Sejal जी. So मेरे को लगता है कि सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा, एंड वी विल ट्राई कि हम नेक्स्ट सेशन भी करें कुछ टाइम के बाद, सो दैट किन्हीं को और कुछ डाउट्स हो कैसे डेवलपमेंट करना है, डेवलपमेंट में कौन सा लैंग्वेजेस यूज करना है और क्या क्या अपॉर्चुनिटी है हमारे पास लाइक ब्लॉकचेन एंड ऑल, उस पर डिस्कशन, जी सॉक हुआ या फिर ICPC पे कैसे अगर किसी को उसके लिए प्रिपेयर करना है तो उस चीज सबके लिए भी, तो वी विल ट्राई कि हम नेक्स्ट मीटिंग be safe and thanks everyone. Yeah, thank you Ishan. Okay, so when Okay. next meeting So will take क्वेरी place? आ रही है कि नेक्स्ट मीटिंग कब होगी एक्चुअली ईशान तुम्हारी आवाज कट रही है, तो मैं बता क्या डिसाइडेड नहीं है अभी, और हमारे पास Yes. आप सबका तो मेल है, एंड हम मेल कर देंगे आप सभी को अगर कोई ऐसा कुछ बनेगा प्लान तो अगर सेशन करने सेशन का. होता है तो हम मेल कर देंगे. Thank you everyone for joining. It was a great experience, and thank you for such positive response. Thank you Ishan and Sneha, and thank you everyone for joining. Thank you, Sejal Have a and nice day. Ishan bhaiya. Have a nice day. So, Okay. ending this meeting. I think we'll